بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرو۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں بہاولپور میں قومی صحت کارڈ کے اجراء کی تقریب ہوئی۔ صحت کارڈ سے رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان اور بہاول نگر کے 1.5 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ صحت کارڈ سے سرکاری نجی ہسپتالوں میں 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں میں صحت کارڈ تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ہیلتھ کارڈ پر 400 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ غریب عوام اب مہنگے ہسپتالوں سے علاج کروا سکے گی۔ جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ ہماری حکومت پورا کرے گی۔ جنوبی پنجاب سے ناانصافیاں اب ختم ہوں گی۔ قانون کی بالادستی قومی جد و جہد سے ہوتی ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، جو پہلے نہیں جاتا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا، یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی۔ اور دوسری چیز، یہ ہم کب کر رہے ہیں؟ سارے پنجاب میں، اور یہ سن لیں پھر سے، کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے۔ 400 ارب روپیہ آپ خرچ کر۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کارڈ تقسیم سے تقریب سے خطاب۔ صحت کارڈ ریاست مدینہ کی طرف اہم قدم ہے۔ صوبے کی 63% آبادی صحت کارڈ سے مستفید ہوگی۔ مارچ تک 11.5 کروڑ عوام کو صحت کارڈ کی سہولت میسر ہوگی۔ پنجاب میں نئے ہسپتال بھی بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب میں یہ کہنا تھا۔ پنجاب حکومت کا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہیلتھ کارڈ کی تصدیق اب 1.88 کروڑ روپے میں پڑے گی۔ نادرا نے ہیلتھ کارڈ پر تصدیق کے لیے 1.88 کروڑ مانگ لیے ہیں۔ حکومت نادرا کو 1.45 کروڑ روپے کی رقم جاری کرے گی۔ حکومت نے ہیلتھ کارڈ کی تصدیق کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ نادرا آفس نے ہیلتھ کارڈ کی تصدیق پر معاونت دی ہے۔ محکمہ خزانہ کا موقف سامنے آیا ہے۔ مزید محکمہ خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تصدیق کے لیے مہیا سروسز پر یہ فنڈز دیے جائیں گے۔ پی پی ایس سی چیئرمین اور ممبران کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی۔ پی پی ایس سی نے ملتان کے لیے 7 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کی سمری ارسال کی ہے۔ چیئرمین پی پی ایس سی کے لیے 12 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کی تجویز تھی۔ محکمہ آئی اینڈ سی نے ابتدائی طور پر ہر اعتراض لگا کر سمری واپس کر دی ہے۔ پی پی ایس سی نے پنجاب سروسز ٹریبیونل کے برابر تنخواہ مانگی تھی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ پی پی ایس سی چیئرمین اور ممبران کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے متعلق آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹورز پر کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مختلف برانڈز کے گھی، کوکنگ آئل مزید مہنگے ہو چکے ہیں۔ کوکنگ آئل 75 روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ گھی کی فی کلو قیمت میں 66 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ہلدی کی 100 گرام قیمت میں 8 روپے کا اضافہ ہوا۔ وائٹ زیرہ 200 گرام 34 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ الائچی کی 25 گرام قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ مسالہ 100 گرام 34 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ بچوں کا 100 گرام دودھ 30 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ 1 لیٹر پیک دودھ کی قیمت میں 5 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش نایاب ہو گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور گھی میسر نہیں ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آنے والے شہری مایوس ہیں۔ مزید بات کریں گے الشبا آصف سے۔ جی الشبا۔ جی بالکل، ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا نہ ہونے کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ آٹے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گھی بھی میسر نہیں ہے۔ اگر میرے آپ کو کیمرہ مین ریکس دکھا سکیں تو یہ بالکل آٹے اور گھی کے ریکس خالی ہیں۔ اب یہاں پہ جو خریدار آئے ہوئے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو کتنی پریشانی کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ کم از کم یہ تو پوری ہونی چاہیے، یہ تو ان کا فرض بنتا ہے حکومت کا، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم دور دور سے آتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر آئے ہیں بھی لینے کے لیے چیزیں، تو یہ چیزیں تو پوری ہونی چاہیے۔ اتنے دور سے آتے ہیں، یہاں پر آٹا بھی نہیں ہے، مین چیز جو ہے نا، اس کے علاوہ گھی بھی نہیں ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے تو یہ پوری کریں۔
ठीक हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आटा और घी लेने आए हुए हैं वो परेशान हैं। उनका यही कहना है कि दूर दराज से आते हैं और आटा और घी ही मैसर नहीं है। मेन चीज़ आटा जिससे रोटी बनाई जाती है, घी जो है सालन के लिए इस्तेमाल होता है, ये पूरे रेक्स जो हैं खाली है। और यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया का कहना है कि उनको कोई मालूम नहीं है कि यहाँ पे जो आटा है वो कब आएगा। अगर शहरी आ रहे हैं पूछ के जा रहे हैं तो उनका यही कहना है कि अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे आटा और घी कब आएगा। तो ठीक है, इस पर बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कहीं महंगाई तो कहीं अशिया खुरानोश सिरे से गायब हैं, आवाम खासे परेशान हैं। मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। अब गवर्नमेंट भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। उसके जो उन्होंने दावे किए थे उन सब में वो फ्लॉप हो चुकी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स में हम जाते हैं, ना तो आटा मिलता है ना घी मिलता है, जाते हैं लाइन में लग के वैसे ही वापस आ जाते हैं। जो असर सूख वाले लोग हैं वो पहले यूटिलिटी मालकान से मिलकर जो थोड़ा बहुत स्टॉक आता है वो निकलवा लेते हैं। इस हुकूमत ने गरीब आदमी के मुंह से नवाला भी छीन लिया। स्टोरों पे आटा नहीं है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का बायस है, और जो आटा आता भी है तो वो ये स्टोर वाले बाहर भेज देते हैं जो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। बुनियादी चीज़ें खाने पीने की, आटा है, घी है, वो हुकूमत को चाहिए, वो दस्तयाब होना चाहिए। और ये नहीं कि इतना महंगा हो कि 900 रुपये में, 1000 रुपये में। और गरीब आदमी के, अगर एक गरीब आदमी के 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं तो वो 500 रुपये उसकी कमाई है। तो मुल्तान में सरकारी कीमत पर आटा लेना है तो घंटों इंतजार करना होगा। कासिम बेला के सहूलत बाजार में शहरी आटे के हसूल के लिए बेहाल हैं। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, क्या मुश्किलात हैं लोगों को? अच्छा बिल्कुल, ये कासिम बेला का जो है ये एरिया है और यहाँ पर हुकूमती आटे का स्टॉल लगा हुआ है। जो यहाँ पर इलाका मकीन है, जो रिहायशी है, जो यहाँ पर आटा लेने आ रहे हैं, शिकायत उनको ये है कि यहाँ पर एक ही बंदा जो है वो आईडी कार्ड लिख रहा है और एक आईडी कार्ड पर एक थैला दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लंबी लाइन है जिसकी वजह से इनका जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। बात करते हैं इलाका मकीन से, क्या कहेंगे भाईजान, जब भी आटे का थैला लेने आते हैं कितनी देर खड़ा होना पड़ता है? तकरीबन 1.5 घंटा, 1 घंटा पूरा मस्त यहाँ लगता है। सारा टाइम हमारा सुबह का ज़ाया होता है। अब सुबह नाश्ता नहीं मैं करके आया, यहाँ आटा लेने आया हूँ तो आटे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, आटा पड़ा हुआ तो है अच्छा खासा। तो यार एक थैला दे रहे हैं ना, काफ़ी लेना है ना, काफ़ी देर लगेगी। कल एक बंदा है, कल मैं खड़ा होकर चला गया, आज आया हूँ, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। लाइन में लगकर आटा ले रहे हैं। मुतालबा ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक टेबल लगी हुई वहाँ 2 टेबल लग जाए ताकि बंदे जो है वो डिवाइड हो जाएं, प्रेशर जो है वो भी कम हो जाए। इसके साथ साथ टाइम जो है आवाम का वो बच सके। एक 10 किलो के आटे का थैला लेने के लिए आधे से 1 घंटा एक घंटा जो है टाइम जो है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियाँवाली की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब हो चुकी है। शहरी आम मार्केट से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मियाँवाली के यूटिलिटी स्टोर की तो यहाँ पे दीगर सामान तो दस्तयाब है, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सबसे अहमियत की हामिल जो चीज़ है आटा और चीनी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ख़रीदार शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, यहाँ पे आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है? आटा चीनी दस्तयाब नहीं है। गरीब लोग हैं, यूटिलिटी स्टोर से आने गिन वास्ते आटा चीनी नहीं मिलता। अस बहुत दिहाड़ा तो परेशान हाँ। और पास मार्केट में महंगे, इतने सस्ते से मिलता नहीं पिया, ये चीज है जी। खरीदार महंगे दामों आम मार्केट से आटा खरीदने पर मजबूर हैं। चाचा जी क्या अक्सो, आटा ही कोनी चीनी कोनी, क्या अक्सो इस हवाले ना? यूटिलिटी स्टोर वाले कहू छे भले करके तो कहू आदन हे कोना, अच्छा हे सही ये मुंह मिला दे तो सारे देंदे पे ते उडे महंगा जरा प्राइवेट दुकान हैं उत्थे है महंगा ते इत्थे जरा ता कहू मिल वेंदा, कहू नहीं, बहु नहीं मिलता। गरीब जरा दी पहचान को नहीं ना, उस नहीं मिलता। सारी जरा ता पाकिस्तान दे विच ये सारी करप्शन ते जखीरा दोधी पई थींदी है। कहू तो गट्टू चाह देने चीनी दे, कहू आटा दे ते कहू आदन हे कोना, बस गल गई मोक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस बुजुर्ग की बात सुनी कि स्टोर पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। आम मार्केट से शहरी जो है महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं, चीनी खरीदने पर। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोटरदू में 2 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत का सामना है। 2 माह से आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर खत्म हो चुका है। मजीद बात करेंगे तैमूर अथर से। जी तैमूर।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और 2 माह से आटे की जो किल्लत है वो बरकरार है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि अभी तक आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर नहीं आया। मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर का मकसद तो ये था कि यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलें, आटा कब से नहीं मिल रहा और आटा ना मिलने की वजह से क्या मुश्किलात होती हैं आपको? आटा बाजार से महंगा और 2 माह से यहाँ आटा आ नहीं रहा, आटा शार्ट है 2 महीने से। तो कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बाजार से तो महंगा है, हद से भी ज़्यादा। अच्छा आप मुझे बताइएगा, ये आटा जो है 2 माह से नहीं आ रहा, स्टॉक खत्म हो गया, इसकी वजह क्या है, क्यों आटा नहीं मिल रहा? और ना मिलने की वजह से तो गाहक तो आते होंगे, चक्कर लगा के वापस चले जाते होंगे। जी बिलाशुबा, वाकई ही तकरीबन 2-1 माह हो गए हैं कि आटा नहीं आ रहा। बाकी घी और चीनी वो डेली बेसिस पर आ रहा है। तो इंशाल्लाह आज कल में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो सुनने में आ रहा है कि आज कल में इंशाल्लाह आटा भी आ जाएगा। 2 माह में कितनी मुश्किलात हुई आटा ना मिलने पे? जाहिर है आवाम आती है, पूछती है आटे का, और पीछे हेड ऑफिस का मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीमिया खान में साबिक MNA और ज़िला जनरल सेक्रेटरी मियां इम्तियाज़ अहमद बढ़ती हुई महंगाई पर फट पड़े। मियां इम्तियाज़ अहमद का कहना है कि रोज़ बरोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मज़ीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम। जी, LPG की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, तमाम चीज़ें मसलसल महंगी होती जा रही हैं। साबिक MNA और ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ साहब, महंगाई है रुकने का नाम नहीं ले रही, LPG महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, तो अवाम को रिलीफ मिल रहा है? अवाम को बहुत रिलीफ मिल रहा है। आप देखें कि अवाम जो चीज़ आज 200 में ख़रीदती है, अगले दिन उसको 300 में ख़रीदनी पड़ती है। ये अवाम को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की नाअहल हुकूमत, और जिसको जिस तरह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, और इसने इस मुल्क की जिस तरह तबाही ये लेके आया है, गरीब आदमी बेचारा अपने 2 वक्त की रोटी से भी इस वक्त परेशान है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। आप देखें कि 2 महीने में बिजली का रेट आप देखें कि कम से कम 8 रुपये यूनिट महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं। हर चीज़, घी हो, आटा हो, चीनी हो, दालें हों, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं हो रही। और लोग इस वक्त इतने परेशान हैं, हर वक्त लोग ये सोचते हैं कि आज जो चीज़ हम सस्ती लेके आए हैं, कल उससे हमें महंगी ही मिलनी है। तो हर आदमी इस वक्त इस इमरान हुकूमत से जान छुड़वाने के चक्कर में है, और बददुआएं इस हुकूमत को मिल रही हैं। जो ये कहता था कि थोड़े से लोग इकट्ठे होकर ये कह दें कि गो इमरान गो, अब तो पूरा पाकिस्तान गो इमरान गो कह रहा है, लेकिन इसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। और ये गरीब इस वक्त बददुआएं दे रहे हैं, झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। आप मीडिया को देखें, सोशल मीडिया पे आप देखें कि किस तरह लोगों की चीखें निकली हुई हैं, और ये कह रहा था कि मैं लोगों को रुलाऊंगा, तो ये लोगों को रुला रहा है इमरान खान। बिल्कुल, लोगों को रुलाया जा रहा है, ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है इनकी तरफ से, मुस्लिम लीग नून के ज़िला जनरल सेक्रेटरी साबिक MNA की तरफ से, और कहा जा रहा है। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर कानपुर में गवर्नमेंट स्कूल टीचर के घर चोरी की वारदात के बाद पुलिस के नामुनासिब रवैये पर तलबा का एहतजाज। तलबा का DSP ऑफिस के सामने बैनर्स उठा कर एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़िशान डोगर से। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त DSP दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट और उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं और अहले इलाका एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कौम के जो उस्ताद इकराम है उनको भी पुलिस इंसाफ देने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद है, वो उनसे जानते हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। सर बताइएगा, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? 24 तारीख से जो है वो मेरे घर से चोरी हुई है। मोटरसाइकिल नया CD रेड कलर में था, वो घर से उठा के ले गए हैं। 1,05,000 रुपया और मोटरसाइकिल मेरा जो चोरी हो गया। अब हमने FIR वगैरह करवाई है, लेकिन उसका जो है हमें अभी तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। मुलाजम लोग हैं, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती। आज बड़ी मुश्किल से मैंने छुट्टी ली है, और यहाँ मैं एहतजाज अपना रिकॉर्ड पूरा मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आया हूँ। उसके बाद जो है ये बच्चे जाने और ये महकमा जाने, मैं दोबारा यहाँ पर ना आऊँगा, ना मुझे ज़रूरत है। जी बिल्कुल, उस्ताद भी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वो इस वक्त थाना DSP दफ्तर के बाहर। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जतोई से खबर दें, थाना बीट मीर हज़ार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल और ज़ना अलजबर के मुकदमे में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ थाना बीट मीर हज़ार पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करेंगे आपको जतोई से। थाना बीट मीर हज़ार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कत्ल और ज़ना अलजबर के मुकदमे में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम रमीज को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के खिलाफ थाना बीट हज़ार पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
मुजफ्फरगढ़ से खबर दें, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़िले में खुली कचहरी। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आबिदा फरीद समेत रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, ज़िला कौंसल हाल मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद जो किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा खुद मौजूद हैं और साइलिन के मसाइल सुन रहे हैं। डीसी साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुली कचहरी का मकसद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी जो रेवेन्यू अवामी सर्विस की कचहरी है, ये पिछले 15 महीने से जारी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड SMBR। इसमें जो हमारे रेवेन्यू रिलेटेड मसाइल हैं, लोगों के डोमिसाइल के इशू होते हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही होती, फ़र्द मलकियत का इशू होता है, तो वो यहाँ पे एक कमरे में हमारे तमाम रेवेन्यू स्टाफ इकट्ठा होता है, साहबान बैठे होते हैं, ADCR मैं खुद बैठता हूँ, तो मेक श्योर कि उसी दिन जो उनको हफ्ते या महीनों में चीज़ नहीं मिलती, इसी एक छत के नीचे बैठ के उन्हें हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली डोर स्टेप पे सर्विसेज देने का है। हमारे ऑफिस भी खुले होते हैं। ये स्पेसिफिक पहले महीने के पहले 2 दिन जो है यहाँ हम इधर इकट्ठे बैठते हैं तमाम रेवेन्यू स्टाफ के साथ कि लोगों के मसाइल देर एंड देन हल हो सके। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक बेसिकली खुली कचहरी का मकसद यही होता है कि लोगों के यहाँ पर जो मसाइल हल किए जाए और साइलिन जो भी मसाइल यहाँ पर लेकर आते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने सालिन की दरख्वास्त पर समाप्त की है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। हुकूमत पंजाब की हदायत पर माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का इनाकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी पहुंचे हैं और साइलिन की दरखास्तों पर समाअत भी की है। तो मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, खुली कचहरियों का इनाकाद किया जा रहा है, किस हद तक साइलिन का एतमाद जो है वो इदारों पर बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम 1 और 2 तारीख को हर महीने की खुली कचहरियों का इनकाद करते हैं मुख्तलिफ तहसीलों में। तो उस सिलसिले में आज मैं खुद खानेवाल तहसील में तहसील ऑफिस में मौजूद हूँ। साइलिन के जो इश्यूज़ हैं रेवेन्यू के मुतल्लिक, वो हमारा कंप्यूटराइजेशन का IDLR का सारा अमला मौजूद है, पटवारी साहिबान मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश है कि लोगों के मसले फौरी और मौके पर हल हों, बजाय कि मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। इसका मकसद ये है, तो वो कोशिश जारी है। इंशाल्लाह ये है कि हमारे पास जो एप्लीकेंट आता है आज उसका हम मसला हल ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोटचुठा में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच ने सालिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए हैं। मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक आवाम के रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए महीने के पहले 2 दिन रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से आज तहसील कोटचुटा में भी यहाँ अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुटा अहमद नवीद बलोच साइलिन के मसाइल सुन रहे हैं और उन पर फौरी अहकाम जारी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर साइलिन मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये खुली कचहरियाँ अवामी मसाइल के हल में किस कदर मामून साबित हो रही हैं। जी बुजुर्गो, दसवां खुली कचहरी आए बैठे हुए तुम दरखास्त दी हुए थोड़े मसाइल हल थी बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो एहतमाम किया गया है खुली कचहरी का, खादिम पंजाब वज़ीर आला सरदार मोहम्मद उस्मान साहब बुज़दार साहब ने, ये अहमद नवीद बलोच साहब हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुटा, इनकी मौजूदगी में महीने में 2 दफ़ा खुली कचहरी होती है। हमारे अराजी के जितने भी मामलात होते हैं, शिकायत वगैरह होते हैं, सुनते भी हैं और हल भी कराते हैं। और ये महकमा बहुत अच्छा महकमा है, ये हमारे साथ बहुत ताउन करता है। खाद की पहले किल्लत हुई थी, अभी माशाल्लाह खाद भी गए बगैर मिल जाती है और फसलात की पोजीशन भी अच्छी है। हम इनके मशकूर हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। जी बिल्कुल, खुली कचहरियों में साइलिन के मसाइल जो हैं वो हल किए जा रहे हैं। एक और साइल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गों किमें देते पे खुली कचहरी थोड़े मसले हल थी पाए? बेहतरीन थी बेहतरीन, ऐसी साहब अच्छा आदमी है, पटवारी सारे हल्के दे अच्छे आदमी हैं, पूरा तावन पकड़ना। जी बिल्कुल, खुली कचहरियों में साइलिन जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए। जी ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वहाड़ी जिला कौंसिल हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद। अवाम के रेवेन्यू से मुतालिका मसाइल सुनकर हल के अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद बात करेंगे हाफिज वाले मोहम्मद से। जी सवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इस वक्त तमाम अजला और तमाम तहसीलों के अंदर अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है, ताकि एक ही छत तले तमाम लोगों को रेवेन्यू की सहूलियात फराहम की जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर खिज़र अफजाल चौधरी, हम इनसे जानते हैं। सर, इस वक्त लोगों का हम बेपनाह रश देख रहे हैं और एक ही छत तले तमाम डिप्टी कमिश्नर से लेकर पटवारी तक यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं ताकि लोगों के मसाइल हल किए जा सके, क्या कहेंगे इस बारे में?
جی بالکل جی، یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور ایس ایم بی آر صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق جی ہم ہر مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے لے کے جو ہمارا فیلڈ سٹاف پٹواری تک جو ہیں وہ تمام کے تمام ایک ہی چھت کے نیچے ہوں، اور جتنے بھی درخواست گزار ہمارے پاس آتے ہیں ان کا فی الفور جو ہے ان کی درخواست کا یا ان کی مشکل کا ازالہ کر سکیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے سالہ سال سے کچھ معاملات جو ہیں وہ التوا کا شکار تھے۔ جب ہم سب اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً حل ہو چکا ہے۔ تو یہی ویژن ہے گورنمنٹ کا، اور اسی کی کمپلیشن کے لیے جی ہم یہاں پہ جمع ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح آج 2 بجے تک اور کل پھر یعنی کہ 2 تاریخ کو بھی 2 بجے تک ہم بیٹھ کے عوامی مشکلات جو ہیں وہ یہاں سنیں گے اور ان کے ازالے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، عوام کے ازالے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سائل بھی موجود ہے جس کا تقریباً 10 سال کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا تھا اور کتنی دیر کے بعد حل ہوا ہے؟ سر میرا مسئلہ تھا فرد بدر کا، اس کے کورٹ کے آج آرڈر بھی موجود تھے۔ 10 سال سے پٹواری میں چکر لگوا رہا تھا لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب نے موقع پہ ہمیں آرڈر کیے، فل فور آرڈر، اور یہی موقع پہ حل کروایا ہے۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں اپنا جی بالکل، عوام کی طرف سے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی عوامی ریونیو خدمت کچہری جو ہے اس کا عوام کو جو ہے وہ براہ راست فائدہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے لے کر فیلڈ سٹاف تک جو ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور لوگوں کے جو ہے وہ جو مسائل ہوتے ہیں ریونیو کے وہ ایک ہی چھت تلے حل ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جمع غفیر ہے کہ جو اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے جو ہے یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے سوال بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کروڑ پکا ماڑی قطب میں سجا ثقافتی میلہ پنجاب بھر سے آئے گھوڑوں کا ڈانس منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاشق حسین قریشی سے۔ جی عاشق۔ جی بالکل، کیروڑ پکا کے نوائی علاقے جو ہے ماڑی کتب جو بیلے والے کے ساتھ کا علاقہ ہے، وہاں پر جو چولستان، کیونکہ یہاں پر یہ علاقہ ہے، یہاں پر سیرا میں جو خاموشی ہے اس میں رنگ بھر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر ثقافتی میلہ گھوڑوں کا سجایا گیا ہے، جہاں پر سیاسی سماجی شخصیت سے جعفر گیلانی موجود ہیں جو یہاں پر اپنے ڈانس گھوڑا کے ساتھ جو ہے یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ دیکھیں یہ ہمارا کلچر ہے، ہم میدانوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ہسپتالوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا دیہات کا، اور خاص طور پہ اس میں ایکسرسائز بھی ہے، ایکسرسائز کے علاوہ اس میں روزگار بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی جڑوا لوگ ہیں اس میں ڈھولی، شرنائی، سوار لوگ ہیں، ان کی روزی ہے، ان کی روزی روٹی ہے، عزت کی روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہ دوسرا ہم یہاں امن کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں دہشت گردی ہے، آج آئیں دیکھیں کہ ہم نے کتنا خوبصورت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا پیغام دے رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں، پاکستان کو پیسفل ملک بنانے کے لیے ہم یہ فروغ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے فور فادر سے آ رہا ہے، ہم ان کو کامیاب کریں گے، میدانوں کو آباد کریں گے، ہسپتالوں کو ویران کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جی جیسا کہ جعفر گیلانی کا کہنا ہے، ہمارے بزرگوں سے یہ ہمیں ثقافت ملی ہے، اور اسی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے میلے سجائے جاتے ہیں، اور یہاں پر گھوڑ ڈانس جو ہے دکھایا جا رہا ہے، جس میں بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔